Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. So in our previous session, we discussed about the concept of error and what is happening in error that we discussed in our previous session. So in previous session, we discussed about the types of error. Mainly, the title of our session is the error, the types of error, the measuring process error occurrence, all the types of error category we discussed in our previous slide. Error, systematic errors, sources of systematic error we also discussed. And after that, the end of uh, lecture number 8 of instrumentation and measurement was on random error. So we completely discussed the concept of random error, the randomness in during the measurement. Observer can observe the reading by the random error, then the error can be occur in our original reading. Then the set point as per the required of user cannot be fulfilled. Then due to this random error, the accurate reading cannot be measured by an observer. So randomness can also be many of the types, and the randomness can affect the performance of instrument as per the reading. We further towards coming towards the random errors, which can also be cause of the electrical noise can be a source. बाज़ दफ़ा electrical noise जो हमारे ऐसे devices या ऐसी वायर्स जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के करीब से गुजर रही होती हैं, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट रखती हैं, या अपना इंड्यूस नॉइज इफेक्ट रखती हैं, इंटरफेरेंस नॉइज इफेक्ट रखती हैं, इन सब के नतीजे में सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट में नॉइज इंक्लूड हो जाता है, और एज पर दी रिक्वायरमेंट आउटपुट हम नहीं हासिल कर रहे होते। रीडिंग तो आती है बट वो रीडिंग एरर के साथ आती है। तो हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल नॉइज कैन बी अ सोर्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट। Random errors can be overcome by averaging several measuring values or using any other statistical technique. The statement of error remain bound in statistical quantity. So these are another category and the causes of random errors which are can be derived by and affect the measuring process. Further, we may able to assign 95% or even 99% confidence level that the measurement is a certain value within the error bound of ±1%। बाज़ दफ़ा होता है कि हम जिन सिस्टम के ऊपर मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें हम टॉलरेंस लेवल रख देते हैं कि प्लस माइनस ऑफ परसेंटेज एंड प्लस माइनस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ 5 और 10%। हमारी जो फ्लक्चुएशन ऑफ द रीडिंग है ये हो सकती है, इसमें इनमें इनमें जो वेरिएशन है रीडिंग की इतनी आ सकती है, प्लस टाइम भी और माइनस टाइम्स भी दैट। और हमें उस पर कॉन्फिडेंस भी होता है कि हमने ये कैलकुलेट की हुई है, तो इसमें इतने परसेंट एरर हम काउंट कर सकते हैं और एरर का चांस हो सकता है। दैट्स अ रीजन कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अक्सर और बेशतर उसका टॉलरेंस लेवल भी लिखा हुआ होता है कि रीडिंग जो है इससे प्लस परसेंट इतनी और प्लस दैट परसेंट इतनी भी हो सकती है, माइनस में भी। दैट्स अ रीजन कि रैंडमनेस के अंदर टॉलरेंस लेवल भी अपना एक अहम किरदार अदा करती है, जिसको उसकी कैलकुलेशन ऑफ टॉलरेंस के मुताबिक आप ये काउंट कर सकते हैं कि ये रीडिंग जो इस वक्त मुझे मिल रही है इसमें एरर का चांस, रैंडम एरर का चांस टॉलरेंस के मुताबिक प्लस माइनस 5%, 1%, 2% हो सकता है। We can ever attach a 100% probability to measurement values that are subjected to random errors. So और बाज़ दफ़ा ये जो एरर की प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% भी हो सकती है, और इसके नतीजे में जो हमारी रैंडमनेस है, रैंडम एरर, वो ज़्यादा भी आ सकता है। सोर्सेज ऑफ एरर
ज़्यादातर जो इसके बारे में हम बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर मस्ट बी एग्जामिन्ड केयरफुली to determine what type of error is present in either it's a systematic or is a random error। तो ये बहुत अहम एक चीज है कि जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि हम इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग ले रहे हैं वो हम किस तरह से ले रहे हैं, उसमें अगर एरर आ रहा है तो किस किस्म का एरर आ रहा है, कि वो आइदर इट्स अ रैंडमनेस, कि वो रैंडम है, कुछ भी आ रहा है, या जिसका सोर्स या कॉज नहीं पता लग पा रही, तो वो रैंडम एरर उस साइड पर आएगा। और ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं। जबकि सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो इन कॉजेस के नतीजे में आता है, जो सिस्टम के या मेजरमेंट के अपने इंस्ट्रूमेंट के पैदा होने वाले सिस्टम या उस इंस्ट्रूमेंट के नतीजे में एरर आ रहा होता है। तो सिस्टमैटिक एरर नॉर्मली कैटेगरी में हम आते हैं तो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बेस्ड एरर्स कहलाते हैं, और रैंडम एरर्स का जो कॉज ज्यादातर होता है वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स के नतीजे में होता है। सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स की अगर हम बात करें इन डिटेल, तो सिस्टम डिस्टर्बेंस ड्यू टू मेजरमेंट। जब हम सिस्टम के जरिए से मेजरमेंट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट के जरिए से जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो एक मैकेनिकल टेम्परेचर डिवाइस हो, लेट से अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर सेंसर्स जो हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं, वो आपके थर्मोकपल हो गए, थर्मिस्टर हो गए, आरटीडीज हो गए, थर्मोमीटर हो गए, इनकी जो इफेक्ट्स होते हैं डिस्टरबेंस के नतीजे में, वो भी वेरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं जहाँ इट्सल्फ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो उसका इफेक्ट इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट का उस रीडिंग के सेंसर को मुतासर करते हुए ऑब्जर्वर की रीडिंग में भी तब्दीली वाकई कर सकता है। तो सिस्टमैटिक सिस्टम डिस्टरबेंस इसकी वजह से भी आ सकती है इन कॉजेस के नतीजे में। अब इसका वाइस वर्सा करें तो एक शिफ्ट इंजीनियर अगर टेम्परेचर को मेजर कर रहा है और एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जो कि स्कर्दू में है, सिब्बी में, कल्लात में, या फिर कोयटा के अंदर वो इस टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी माइनस में चल रहा होगा टेम्परेचर का, तो वो भी टेम्परेचर के उस इफेक्ट को मुतासर कर सकता है। तो ये डिस्टर्बेंस ऑफ दी एरर्स इसके नतीजे में भी आ सकती हैं। सेंसर सिस्टम के जरिए से आती हैं तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, लेकिन मैंने जो ये इफेक्ट्स बताए हैं ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स बताए हैं जो कि रैंडमनेस का बायस बन सकते हैं और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का बायस बन सकती हैं। एरर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल इनपुट्स, अब इनको भी हमने जिक्र कर लिया है कि एनवायरमेंट्स के जो इफेक्ट्स हैं वो भी एरर को लाने के बायस बन सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे, इसी हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के एरर्स की, तो ये थर्ड सिनेरियो में इसमें देने की कोशिश करूंगा आपको, कि अब ऐसी लैब के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं, सेंसिटिव केमिकल्स के बारे में रीड आउट कर रहे हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं जहाँ समंदर करीब ज़्यादा है, कोई दरिया करीब है, और सर्दी के मौसम के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है समंदर के करीब। तो अब ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है वो भी आपकी रीडिंग को मुतासर कर सकता है, और इस रैंडमनेस के नतीजे में आपकी जो रीडिंग है वो भी वायलेट कर सकती है एज पर दी सेट पॉइंट। दैट मीन्स के एरर शामिल हो जाएगा उसमें। वेयर इन इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट्स, अच्छा वेयर एंड टेयर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स के जब आप उसको मेजर कर रहे हैं तो वो तरीकेकार ठीक नहीं है, और उसमें फ्रिक्शनल टाइप के इफेक्ट्स आ जाते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड चार्ज के इफेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको अगर रफली डील कर लिया जाए तो उनका भी जो सेट पॉइंट्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके नतीजे में वो एरर के साथ रीडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को भी देखना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से काम कर रहा हो। कनेक्टिंग लीड्स, अब आप जब रीडिंग ले रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा होता ही है कि हमने वो कनेक्टिंग लीड्स सही तरीके से नहीं लगाए हुए होते और रीडिंग नहीं आ रही होती। बिल्कुल ये उसी तरीके से है कि कोई साहब जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग, लास्ट एक ऑब्जर्वेशन हो भी रहा था लैब में, हम जब ये इसकी लैब्स भी करते हैं, तो हम रीडिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए से ले रहे हैं, मॉड्यूल्स के जरिए ले रहे हैं, लीड्स भी कनेक्टेड है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा एज पर दी यूजर, एज पर दी इंस्ट्रक्टर, या एज पर दी रिक्वायरमेंट हमारा आउटपुट नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि जो साहब उस पे रीडिंग नोट डाउन कर रहे थे उन्होंने मॉड्यूल ऑन ही नहीं किया हुआ था।
भी लीड्स भी लगाई हुई हैं, मीटर भी रखा है, मॉड्यूल भी है, लेकिन बटन ऑन नहीं किया हुआ मॉड्यूल का, जिसकी वजह से वो रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि ये भी रैंडम एरर का बायस बन सकता है। तो ये ब्लेंडर्स के सेंस में आती हैं चीज़ें। बहरहाल, तो कनेक्टिंग लीड्स बाद दफ़ा हम जो कनेक्ट करते हैं उनको, उनके भी इफेक्ट्स बाद दफ़ा आते हैं कि ये लीड्स को हम मोड़ के रख देते हैं, या इन लीड्स का जो इफेक्ट है ये पुरानी हुई भी होती हैं, तो कहीं केबल ब्रेक हुए हुए होते हैं, इनका कंडक्टर कट हुआ हुआ होता है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी एरर का बाइस बनते हैं, और उसके नतीजे में आपकी एक्यूरेट और एग्जैक्ट रीडिंग उसके नतीजे में नहीं आ पाती। उसका सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स इसके नतीजे में भी आ जाते हैं। इसके नतीजे में एक लास्ट कैटेगरी में इसमें डिस्कस करूंगा कि सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर बाज़ दफ़ा हम सिस्टम के ज़रिए से जो नोट कर रहे होते हैं उनमें कंट्रोलर ख़राब हो जाते हैं, या कंट्रोलर जो है वो मल फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, बैटरी जो है बहुत वीक हो गई होती है। तो जो रीडिंग सेट पॉइंट की उस वक्त आ रही होती है ना, एक परमिसिबल कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बैटरी की ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की, वो मेंटेन होना ज़रूरी है। होता ये है कि जब बैटरी की ताकत या पावर ख़त्म होने लगती है, तो नॉर्मली स्मार्ट डिवाइसेस ऑफ द मीटर्स स्पेसिफिकली उनके अंदर एक इंडिकेशन होती है कि वो बैटरी को ऑप्शन दे देता है कि जी अब जो है इसकी बैटरी रिप्लेस कर लें, क्योंकि बैटरी वीक हो रही है, इंडिकेशन आ रही है, तो आपको उस वक्त रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी कर लेनी चाहिए। वरना होता यह है कि आप उसकी लो लेवल ऑफ वोल्टेज और बैटरी के साथ रीडिंग्स को मेजर कर रहे होते हैं, और एक लेवल ऑफ सर्टेन टाइम के बाद जाकर वो पुअर रीडिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। खासतौर पर ये जो ग्लूकोमीटर्स होते हैं, ये जो शुगर आपको प्रोवाइड करते हैं, सेल के ऊपर भी इसकी रीडिंग बेस करती है। बाज़ दफ़ा सेल पुराने हो गए होते हैं, तो इसकी रीडिंग पुराने सेल के ऊपर कुछ और आ रही होती है, और नए सेल के ऊपर रीडिंग कुछ और आ रही होती है। तो और इन ग्लूकोमीटर के अंदर भी ये ऑप्शन आ रहा होता है कि बैटरी यू नीड टू रिप्लेस फॉर दैट टाइम। फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को, सिस्टम डिस्टरबेंस ड्यू टू मेजरमेंट। तो सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होते हैं बाज़ दफ़ा डिस्टर्बेंस के नतीजे में, और मेजरमेंट जब हम ले रहे होते हैं उस दौरान खास तौर पे डिस्टर्बेंस ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, मेजर सिस्टम बाय द एक्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ कॉमन सोर्स ऑफ सिस्टम एरर। तो डिस्टरबेंस बहुत सारी चीज़ों में बाइस बनते हैं, जैसे एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के कॉजेज मैंने बताया आपको, इंटरनल डिस्टरबेंस कॉजेज बात की, इसके बारे में बात की हमने। तो मेजरमेंट सिस्टम के अंदर कॉमन सोर्स ऑफ सिस्टम के एरर इस तरह से आ रहे होते हैं, और डिस्टरबेंस इसमें एक मेनली अहम किरदार अदा करता है एरर प्रोड्यूस होने के। एज एन एग्जाम्पल, इफ वी इंट्रोड्यूस कोल्ड मास इन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर, एक मर्क्यूरी है और हम उस मास के उसके मास को मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोमीटर लगाया हुआ हमने इन दी बीकर ऑफ अ हॉट वाटर, एक बीकर बीकर ऑफ जार जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, और पानी वो गर्म है, और उसका थर्मोमीटर के जरिए से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और वो टेम्परेचर के जरिए मेजर कर रहे हैं, वो थर्मोमीटर के अंदर जो केमिकल फिल है वो मर्क्यूरी है। Then heat transfer would lower the water temperature. However, temperature reduction in this case is so small to be detectable by the thermometer measurement resolution. अब होता ये है कि जो ये हम टेम्परेचर जो मेजर कर रहे होते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर होती है उस केमिकल केमिकल सॉरी वाटर की, क्योंकि हॉट वाटर है, वाटर की जो हीट है वो ट्रांसफर होती है लोअर वाटर टेम्परेचर के अंदर। हाउएवर टेम्परेचर रिडक्ट, और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, क्योंकि जिस बीकर में हमने रखा हुआ है वो खुद भी एज अ एब्जॉर्प्टर के तौर पे काम करेगा। और इसमें होगा ये कि स्मॉल डिटेक्शन जो है आपकी रीडिंग में आ रही है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस इफेक्ट आ सकता है थर्मोमीटर के जरिए से। और रेजोल्यूशन का फर्क आएगा। रेजोल्यूशन मीन्स आपके रीड करने में जो रीडिंग आ रही होगी वो किस हद तक दुरुस्त हो सकती है, दैट इज रीडेबल थिंग इज द by observer is the resolution of measurement. सिस्टम डिस्टर्बेंस ड्यू टू मेजरमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। द डिस्टर्बेंस ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम कैन often be very significant. As a general rule, process of measurement always disturbs the system being measured. और अक्सर बेशतर डिस्टर्बेंस के नतीजे में जो हमारा मेजरमेंट प्रोसेस होता है वो मुतासर होता है, और सिस्टम के अंदर एरर आ जाता है जो कि रीडिंग फंक्शनिंग की तरफ जा भी सकती है। डिस्टर्बेंस
magnitude varies from one measurement system to the next and is affected particularly by an instrument type. अब ये जो डिस्टरबेंस है मैग्नीट्यूड के अंदर, ज्यादातर जब डिस्टरबेंस सिस्टम में इन होती है तो जो वैल्यू होती है या तो वो बढ़ जाएगी और या तो वो कम हो जाएगी, और वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मेजरमेंट करने के निजम सिस्टम की नेक्स्ट एंड इफेक्टेड पर्टिकुलरली ऑफ इंस्ट्रूमेंट टाइप, और ये भी बेस करता है कि इंस्ट्रूमेंट टाइप आपका कौन सा है, कि वो रिफ्लेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है या डिफ्लेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ये उसके ऊपर भी बेस करता है। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर